और अगले दिन सुबह सुबह हेली उधर लैंड कर रहा है और वो अपना कोट पहन रहे हैं, लेकिन कोट पहनते पहनते ही वो इमीडिएटली कोलैप्स हो गए। और वो खुद देखते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है, आप अपना नमाज अदा करना चाहते हैं आप अपना नमाज करिए, जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कोई किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प एंड आई थिंक मैं समझता हूँ कि शायद पूरे दुनिया में आज जितना एक्सपीरियंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का है और इंडियन आर्मी का, वो कोई एक्सपीरियंस दुनिया में कहीं और नहीं है। Hello and welcome to the Crazy Tales Uncut podcast. And as you all know that we all are approaching the 15th August 2024 this year. And what much better than having a wonderful person with us and someone who has given his whole life to the nation. And we all are lucky that we are having the next podcast with the wonderful person all across here. And we welcome Lieutenant General Ajay Kumar Singh, sir. And sir, we are happy that you are on our podcast. We welcome you to our podcast. Thank you very much. Thank you very much. And the soldiers owe a lot. They have given a lot to the nation. And you know, this podcast, we will look forward to see the stories of how they have been building their minds to fight for the nation. So we have Ajay Kumar sir here, who has also been honored with the Param Vishisht medal, the Ati Vishisht medal, and he has given so many years of his dedication to the nation and towards building the nation for better. And we welcome you, sir, once again. Thank you. And to begin with, one thing I would like to know, sir, what drives you to come to this field, and what was the energy and what was the thing which first brought you to what you have been given to this I think nation? it's an interesting question. I think in life, one has to have passion. I think if you have passion to serve, I think primarily it is the passion to serve. And when it comes to serve, I think there is no better service than to serve your own country, this great Indian nation. I think the passion primarily derives from serving this wonderful country. And we would like to know something more about your childhood. How were you, and how did the family support you, or what was the motivation behind before coming to the forces? There's been a great journey of more than 4 decades, about 44 years. Okay. So 4 years of training and 40 years. I was born in a small village, which was earlier at that time part of the Uttar Pradesh, but now part of the Uttarakhand. Taska is the village, very close to Roorkee. Okay. And we are basically from a land-tilling family. Mm-hmm. And, my Tauji, my grandfather died much early. So Tauji is the one who basically looked after the family. And he was also the Pradhan or the Mukhya. So, that place of ours was like the melting pot. So everybody used to come there. I was born in 1964 in a small, hut, an earthen hut. And you'll be surprised that I went there just about few months back before I superannuated. I think it was some way of paying your tribute to the place from where you belong. Definitely. So that was the aim. And, we all believe in the Gram Devta, the Sthan Devta, the Vastu Devta, the Pitra Devta, and so it was very important that you have gone through this journey to go back to your roots and to pay your respect and to pay your obeisance. So it was so wonderful to go there, right at the spot where you were born. It was a nice feeling. It was a great feeling. So that hut is no more. That earthen room is no more. But the plinth still remains. So I stood there for a little while. And I think it's been a wonderful journey. But in this journey, they say that it's like the collective consciousness, it's the collective effort. It has not been only my personal journey. I think it has been a collective journey of everybody who was associated with me. So, right from and family support is extremely important, especially in armed forces. When you join the armed forces, the family support counts for a lot. So I remember I was the second of the sibling. I have a sister who's elder to me, who was about 5-6 years elder to me.
And immediately after I was born, my younger sister was born after about a year and a half. So, but since I said that a lot of all the guests who used to come to the village used to come to us. And, in those days, and I'm talking of 64, the ladies, the women, had great challenges. So if you have to cook, it was there in the chulha, and especially in the warm months, it becomes difficult. So, the ladies of the house are just about, they have finished their cooking and they're wanting their well-earned rest. And suddenly you find that some guests, and in village, if people come, eminent people come, they don't come single. They come as part of an entourage, and suddenly you'll find that 10-12 people have come, and from there they will say कि भाई अभी खाना बनाना है. So the ladies who are wanting rest now, again चूल्हा आपने जलाना है, and उस टाइम में अब खाना भी नहीं आपने गेस्ट के लिए बनाना है, तो it has to be a complete food. And that is when possibly my mother realized that it was becoming a little difficult to have two tiny tots, rather three, including my sister. And obviously she noticed that possibly at least some of them, we were getting neglected. And so she packed, my elder sister and me to Annanihal. So Annanihal is in is Salava. It's a village, Salava, very close to Meerut. This is on the road to Sardhana. Okay. It's a biggish village. And incidentally, my mother, her name is Krishna. And she was born on Krishna Janmashtami. So her name is, and she's the only child. And the family adopted, a son from my Nanaji's younger brother. Okay. And so my grandmother, maternal grandmother, was so happy and so thrilled that, there are two kids who are there. And I think we received unconditional love. Okay. So much of love. So I think those are the important imprints in my life. So your grandmother, उन्होंने आपका मतलब आप जी हाँ बिल्कुल मतलब शुरू के आप समझिए कि maybe I think because since we were there, my sister and me, we were there, and about after my birth, 1.5 years later, my younger sister came. So that till that time we were there. So you can say about, I would be close to 2 years when we were there at my thing, and we stayed. I think then for possibly about 3.5 years, we stayed with my maternal grandmother. She's the one, and first 5 years are very important. Yes. So first 5 years I have spent in these two villages. My own village, Taska, and my maternal village. And it's very, very important. And especially the first 5 years are the one who shape a child. And so much of love was given by my grandmother. And my grandfather, maternal grandfather, Nanaji, was a very distinguished man, a very tall, handsome man. And he was, he was a repository of so many stories. And that time, storytelling, like you yourself are a storyteller. Who knows better than you? So he was a great storyteller. He knew all the stories of Ramayana, of Mahabharata. So later on, when these serials came, I could relate to each story. So as a young child, I think he's the one who narrated those stories. And those stories had a very major imprint. And at that age, like the child remembers when it is an impressionable age. And much later, I'm also quite deep into spirituality. So a lot of people ask me this question that how come army officer got into spirituality? I'll come to that subsequently. But suffice it to say, just few months back, I was talking to my mother. And she said, like I told you about what scene used to be in the village. तो ऐसे अभी खाना बना रहे हैं तो क्या होता था अभी सास अभी उनका सोने का टाइम हो गया है ठीक है लेकिन अभी जो है वो पहले सो गए थे तो अभी जब आपका काम खत्म हुआ है तो अभी उनका उठने का टाइम हो गया सो द बहू वुड रियलाइज कि भाई अब आप तो नहीं सो सकते अगर सासू माँ जगी हुई है तो आपका सोने का कोई मतलब नहीं है तो वो रामचरितमानस पढ़ने लगे तो आई थिंक टू माई मदर वॉज वेरी क्लोज टू हर एल्डर दिस थिंग दैट इज माई ताऊजी's wife, my ताईजी. And both of them, I believe, they used to recite Ramcharitmanas. So I think till the time I was there in the womb, possibly, the Ramcharitmanas was recited. So I don't know, but possibly I feel that possibly could account for the spiritual side. But also, I also wish to state that living in village, one is that you get connected to your roots. It's very important.
to get connected to your roots and to understand the rural India. You know, bulk of India resides in rural areas. Yes. You must understand that part. I think that's what clearly today people are saying, the distinction between India and Bharat. Yes. So I think one has been very lucky that I got to know Bharat. You know, the first 5 years I stayed in that rural setup. I knew everything about this, and even later for every summer holidays we went there. And also one of the important things is staying in a joint family. So when you stay in a joint family, like when we went to Salawa, good about 20 to 25 children used to be there. It was a huge house. For at least 5 chulas were there, 5 kitchens were there in the same compound. Five families were staying. So, you know, the caring, the sharing, growing up together, I think these are great lessons which people learn the coordination also of having people learn cooperation, sharing, you know, adjusting. I think adjusting, which are skills, they are life skills. Yes. So I think these are the early childhood memories, and I'm fortunate, very, very fortunate, to be born in that kind of a setup. And you got the love of both the families, so you can understand everything, each and everything. Absolutely. And as we see that you are also from the Gorkha Yes. category. So as it was told by the Field Marshal Manik Shaw, Yes. that अगर किसी को कोई अगर ये कहते हैं कि उनको मौत से डर लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं and either he is a Gorkha. Yeah, that is a famous quote. Yes. Famous quote of the Field Marshal. That, And being part of it. if someone says he's not scared of death, Yes. then either he's lying or he's a Gorkha. Gorkha. And when I saw you or when I'm talking to you, I just feel, you know, like someone from the Gorkha. He should be a person who is very stood to and very kind of like जिसको देख के लोगों को डर लगे. But I'm feeling like that's so humble you are, and you know, like you're so connected. I feel that when I was just coming, I also thought I had an impression of like people talking about the Gorkha thing, and I wanted to understand how you face such things. और जब आप उस जर्नी में थे while all of your services, आपने सियाचिन में भी काम किया है, and आप ऐसी जगहों पे भी गए हैं जहाँ there were the adverse weather conditions. And you were, as you told, that you were a person wherein you have come up from, मतलब एक होता है ना family bonding से निकल करके आप आए हैं, तो emotions obviously will be in there. And in an adverse conditions जहाँ पे temperature -35 degree तक भी जाती है, how do you build those mindset, और क्या घर की याद आती है, कैसे आप लोग अपने आप को तैयार करते हैं उस very चीज़ के interesting लिए? questions you have raised. So I will tell you the interesting story of कि कैसे मैं फौज में गया. तो फौज में जाना मतलब अनायास हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि फौज में जाना है. I was a good student, and during those times, you know, the family was always aspiring कि भाई बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, you know. And somehow in the western, in that part, you know, there is a little bit of this thing, because possibly you know, that army, this thing is not there, unlike like Punjab, Uttarakhand, Garhwal, Kumaon. You know, there are some belts where there is like a family tradition. Yes. You know, but in that part, since the land holding was quite a lot, and we had a big land holding, so you know, it was assumed that okay, you will carry on with that work. And I was good in studies, so possibly, and you know about Roorkee. Roorkee has the oldest engineering college, the Thomson College of Engineering. And in fact, I would not be wrong to say that Roorkee possibly is the fountainhead of modern engineering in India, because the oldest, and also in Army, the BEG Center, the Bengal Engineers Group Center, that's also one of the oldest center. That's also located there. Okay. And you know, since I'm talking about Roorkee, I must mention something about my hometown, where I you know, spent good about 13 years. It's a very interesting town. It's a very small town. It's a very beautiful city. But it's a very beautiful town, very well connected. And it's I tell people that it's a town of institutes, because you know, you have which is now the IIT, the old Thomson College later became the University of Roorkee, and now it is IIT Roorkee. And people say that the civil engineering in Roorkee is the best in the world. So that culture was there in Roorkee. And so you know, it was assumed that possibly I would you know, join because I was okay in studies. But prior to that, you know, since we had moved from the village, so initially I went to a school which was our neighborhood school.
And I think I was in fifth standard or sixth standard. That's when somebody told my father that, look, my father is a lawyer, is a very eminent lawyer. He was President Bar Association for about 18 years. Okay. So somebody told him, why don't you put your child into, Gabriel's was the St. Gabriel's Academy, was the best school out there. So they said, why don't you put him there? So I think this idea stuck. And in seventh, I was taken to the principal, for an interview to get admitted into this. And माशाल्लाह हमारी अंग्रेजी उस वक्त जो है A for apple, B for bat, my name is अजय, उससे ज़्यादा नहीं थी. तो when the principal took the interview, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल है, कैसे चलेगा? So I think one of my father's friend, ये remarked, अच्छा तो क्या होगा? तो फेल हो जाएगा एक साल, तो वो फेल हो जाएगा तो रिसर्च कर लेगा. I think that was like a clincher. So I was given admission reluctantly by the principal. And I think lo and behold, as the principal had predicted, and as the friend of my father predicted, I failed in 7. So it's a very interesting thing, because I couldn't, I couldn't relate to the instructions. I could catch on because everything was in English, and I couldn't comprehend the language at that time. So it was difficult for me. Those were very tumultuous, difficult, challenging times, I remember. I used to come back and I used to think that I'm not even understanding what is being taught. So I failed in 7th. ये इशू काफी लोगों के साथ अभी भी होता है. अभी भी होता है, बिल्कुल होता है. तो ये एक बहुत अच्छा इशू है, क्योंकि आपका पॉडकास्ट एक इन चीज़ों को कवर करता है एक मोटिवेशन के तौर पर. तो आई थिंक जो लोग सुनेंगे इसको, they should be able to, get this motivation and get this story. Because and fortunately in those times they never used to write, so I still have that report card of mine which says detained. So it's not failed, it is detained. So the right word is detained. And I remember my father just asked me one question, that do you want to continue or should I shift to a Hindi medium school? I said I'll continue. And I think I didn't look back. Initially, possibly I learned by rote and then started understanding, and then it was through comprehension. And I think I was then always good. I was always among first 5. And but the joining army was not there. One of my cousin himself wanted to join army. Okay. So coming back to that story of the failure of this thing, I think in life the failures are like the stepping stone for success. Success, yes. And unless and until you have tasted failure, I don't think you can, achieve substantial success. You may do well in life, but if you want to achieve substantial in life, I think failure is a very, very important. It's, I think, puts things in a very different perspective. So, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि I think failure should not be taken very negatively. I think failure should be taken in a very positive term. And I'm 100% sure that if you keep a positive outlook, then the failures would always lead you to the path towards success. So coming back to how I joined the army, so my cousin was very keen to join. Somehow he could not join. And he possibly knew that this boy can crack the NDA exam. So he's the one who got the form, and we filled up the form. And I cracked the exam. And somehow, that time, like I said, we had a good land holding, and my mother was not too keen, like all mothers, So she was not, I remember, but she was just thinking कि इसका नहीं होना चाहिए. But today she is the most happy. She is the most happy. She is the most proud. But this, I think I would say, this is all conditioning at that particular time. So I cracked, and then I joined the NDA. And I think this was, again, one of the best things that possibly could have happened. Because coming from a village, coming from a town, like Roorkee, when you get to the army, you suddenly get exposed to a very cosmopolitan culture. Because like National Defence Academy, people from every corner of India, every language you will find people from Assam, cadets from Assam, you will find from Uttarakhand, you will find Bengal, you will find from Gujarat, from everywhere. India, I think that melting pot really widens your horizon, really widens. You learn, you walk with them, you cry with them, you train with them. And the training is hard. In National Defence Academy, the training is very hard. And I joined in squadron, which is the hunter, the headhunters. And headhunters are supposed to be one of the most, challenging squadron. The tough, they say when the going gets tough, the tough get going. So hunter is like that. So hunter was the most challenging, but I think we had one of the most wonderful time. Because if you have to join army, I think you must come to terms with tough times, how to handle tough times, how to handle tough situations. And I think the academy taught, the NDA training really taught, and the camaraderie. Possibly when you do it in a group,
and when there are people to help you, I think that is what takes you ahead. That is what takes you ahead. वन क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आप लोग तो मेल है, तो हाउ इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द फीमेल जॉइनिंग ए नेशनल एकेडमी, एंड इज इट द सेम टफ फॉर ईच वन ऑफ इट? जेंडर बायस कुछ होता है? क्या कुछ? No, it's an interesting question, but prior to that, you had asked me also about Gurkhas. So I was very fortunate. I didn't know before this thing because I didn't have an army background, so I didn't know much about the regiment. But yes, one had heard of Gurkhas. And वो जो हमारी तिरछी टोपी होती है ना, so that's like a clincher. And the like a uniform is clincher. also- Uniform is also very. So I think I had just filled, all my choices as Gurkhas, and I got the Gurkhas, and it's I think wonderful. The troops, the Gurkhas are the quintessential soldiers. They live in the moment, and the best part is for a good soldier, and especially for a good infantry soldier, an understanding of ground is extremely important, because unless and until, because you have to fight on the ground finally. So understanding of the ground becomes those traits, how to track, how to adjust to the hills, to the forest, how to live off the land, how to sort of, make sure that you are able to survive. I think those are great skills, and especially because there are a lot of, about 70% of the people are from Nepal. And from the interior areas of Nepal, they are very hardy soldiers, extremely loyal soldiers, and I absolutely agree. A lot of people, the fear factor, when you go to a battle, when you go to a situation, the fear is there. It's not that the fear is not there, but the skill is how to overcome the fear. As soldiers, we learn how to overcome the fear, and especially as an officer. It's very important, because an officer, you have to lead from the front. And when the soldiers see their officer going up front, I think that is a great motivation for them to follow. And if you see the track record of the Indian Army and the infantry per se, you will find the casualty rate of the officers as compared to this thing is the maximum. So the young officers, the commanding officer, the company commander, the platoon commanders, they all lead from the front, irrespective of this thing too. So I think this is what makes the infantry tick, this is what makes the Indian Army tick, and this is what makes the Indian Armed Forces tick. And you talked about the gender. Yeah. So I think it's important at this point of a time, if India has to progress, because there's nearly about half of the population is female population. It's important that they contribute, and they contribute effectively. And I'm happy that we have opened up there are challenges, but I'm sure that when we apply our mind, we can always overcome the challenges. There are mindsets, and I'm sure that by and large, as in this thing, those mindsets also would. But I think Army has done phenomenal work, I would say. Today there are girl cadets in the National Defence Academy. Today there are girl cadets in the Sainik schools. So I think it has started. And I think the women bring a complete different skill set to the table. Yes. I don't know whether you have read of the book The Men Are From Mars and the Women Are From Venus. Yeah, So, I have read half of it. Because it's very different, very differently. The genetic make and the characteristics are very different. So I think a woman definitely brings a different skill set to the armed And forces. some of the And I think it's physical body is also different. as far as and physical body, and that is something I think we all have to understand, that there is a requirement of as far as the physical component is concerned, and that due needs to be given. Yes. It's as simple as that due needs to be given. But let me assure you that the training standards and all are the same, are the same. And I have seen, I think the last passing out of the OTS Chennai I had attended, and OTS Gaya also I have attended, and I have found the women cadets, the girl cadets, extremely motivated. And I would say top of the line. And why I say top of the line is primarily the number of girl aspirants, who aspire for this, and the number of vacancies are limited. So which implies that the bestest go to the armed forces. Bestest go to. So they definitely leave a mark, and they are highly motivated. And I think they are able to, by and large, they are also able to withstand the rigors of the physical part of the training.
एंड जब भी आप किसी वॉर फ्रंट में जाते हैं या कोई एडवर्स सिचुएशंस होता है, कभी आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ देखा हो जहां आपके आंखों के सामने your soldiers or somebody who has just left his life or he has been facing such adverse situations, ऐसी कोई एक स्टोरी हमारे साथ आप शेयर करना I चाहेंगे? think there are large number of such stories because fortunately being an infantry officer, one has faced a lot of situations, these very live situations. I've had about 6, 7 tenures in the Jammu and Kashmir and about 6 tenures which are there in the counter-insurgency and counter-terrorist. So every day, and the intensity of operations at that time, and I'm talking of late 80s and early 90s, was phenomenal. Like I don't think even a single day passed when we didn't have a contact and when we didn't have a firefight. So there have been large number of instances where we have lost our soldiers and they have, but I think it is, if you see, the armed forces is a huge family. The kind of a family support, and the armed forces support that is given to the family per se, the pride that is associated with it, the valor that is associated with this, and all the emotions that come with the sacrifice that are associated with it, I think this is what sort of pulls us. And I have seen, I have also been a young officer. Yes. You just don't, your life is not a consideration when you are into a life situation, because it is a situation. That situation is such, like I will say in spirituality, people say that you must be in the moment. Okay. When you face a situation, it is that moment. It is that moment. You are in the situation. Your mind is not thinking at all anything. There is no other thought. It is how to deal with that situation. And as an officer, as a young man, as a soldier, I think you have to be upfront. You have to be upfront. You have to face the situation fair and square. And then whatever happens, happens. Whatever happens, happens. And there might be situations when maybe a young officer was suddenly lost in a war front. So how do you face the families, and what is the take of them when their single son or their family members, because it's a huge loss for a family and which is irrepressible. Absolutely. So how do you all face the families? I think आप लोगों का क्या take होता है? First is, within the unit itself, because we have lost a brother officer or a fellow soldier or a brother soldier. And it's a huge loss because army units and army establishments are also like a family. So we have lost a family member right there in that unit. We have lost a family member. But I think it's a mixed feeling. It's a sense of loss, definitely. And I will not deny it for a moment. It's also a sense of pride. It's also a sense of sacrifice. It's also, so there are a lot of emotions that are associated with it. And you asked a right question, that what happens to the family. I think wherever such kind of a thing happens, the call is always invariably made by the commanding officer. So the head of the family makes the call. Yes. And tells them. And also says that, okay, you have lost a son, but you have gained so many sons. Each soldier is like your son, is part of your family. I think this association of that unit, and the unit in particular and the Indian Army in general is, I think, becomes a very strong anchor for the family to sustain themselves. Yes, because And they become part, absolutely part. So in all the functions of the unit, they would be called, they would be given a place of respect, they would be shown that kind of a respect and that kind of a, whatever courtesies this thing have to be shown. So then and slowly over a period of time, initially grief is there. There is absolutely. Yes. And I think that grief is there and you have to let that grief flow. But over a period of time, I think this familial bond with the unit and this familial bond with the army, I think replaces that personal this thing. And by and large, you would have seen that most of the families, they really take so much of pride in that particular sacrifice, and they will remember through. Like I would tell you, and you have asked me about the glacier. So I think for an infantry soldier, the service in the glacier, I would say, is the pinnacle of your professional service. Because it's only the Indian Army and the Indian Armed Forces which are operating
at such heights. There is no other army in the world which operates, not even the Pakistan army. Pakistan may claim, but they are nowhere on the glacier. They are all below the glacier. The complete Siachen Glacier is there with us. They don't even have even an inch of the Siachen Glacier. So they are below the glacier. It's only the Indian Army which is operating on the glacier. So outside the Himalayan region, especially in the Europe and the Americas, the highest peak is, I think, just about 18,000 feet. And the Indian Army, not only, so if you climb that 18,000 peak, it's supposed to be a huge accomplishment, and rightfully so. I'm myself a mountaineer, and it is rightfully an accomplishment. But Indian Army is one which not only climbs, but also stays, and stays for not 1 or 2 days, but stays for more than 3 months. And if you take the induction, the day induction, it is nearly practically about 6 odd months you are in that area, and fights. So not only climb, but stay and fight. I think it is phenomenal, and it is the pinnacle of your professionalism. In a place where the temperature is minus 53, minus 54 degrees Celsius, every moment you have to, the weather is a challenge, the terrain is a challenge. सर, जैसे आपसे हमने वही पूछा कि ग्लेशियर्स में जो इतने एडवर्स कंडीशंस में लोग रहते हैं, और उनके क्या माइंडसेट होते हैं, किस तरीके से वो वहाँ पे और किस तरीके से अगर फैमिली के साथ उनको बात करने का मन करे या वो उनसे कनेक्ट करना चाहे, तो किस तरीके से आप लोग उनको, मतलब क्या रहता है वहाँ पे, क्या वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, क्या वो बात कर सकते हैं? सो उसके बारे में थोड़ा। ग्लेशियर में क्या है कि आपको ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग, बल्कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और फैमिली के साथ कनेक्ट ज़रूरी है। तो वहाँ हमने स्पेशल मोबाइल रखे हुए हैं ताकि आप, मतलब आज की तारीख में शायद ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक जवान फॉरवर्ड एरिया में रहकर सब जगह बात कर सकते हैं। तो ये आजकल एक पॉसिबिलिटी है। बट ग्लेशियर के विषय में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे अवसर मिला ग्लेशियर में कमांड करने का। मैं सेकंड इन कमांड था, तो उसमें 3 महीने से ज़्यादा ग्लेशियर पर आपको नहीं रखा जाता बिकॉज वेदर फैक्टर की वजह से। तो पहले 3 महीने में कमांडिंग ऑफिसर जाते हैं और दूसरे 3 महीने में सेकंड इन कमांड जाते हैं। तो एक सेकंड इन कमांड होने के नाते सेकंड इंडक्शन में मैं सियाचिन ग्लेशियर में भी, जो नदर्न ग्लेशियर है, जो कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला है, सबसे ज़्यादा दुर्गम इलाका है, तो वहाँ मुझे रहने का मौका मिला। तो एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम सब एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। तो जो एक माइंडसेट है कि एक दूसरे की मदद बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी सिस्टम होता है कि भाई ये मैं आपका बड़ी हूँ, तो हम एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेंगे। तो कई बार क्या होता है, खासकर ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स होते हैं, तो अगर मान लो उनको कोई थोड़ी दिक्कत भी हो तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि भाई। लेकिन ग्लेशियर में अगर आपको दिक्कत है तो वो बताना ज़रूरी है ताकि सही समय पर आपका उपचार हो जाए। तो हमने जो छोटी छोटी पोस्ट होती हैं, जहाँ तकरीबन कई जगह 10 आदमी हैं, कई जगह 15 आदमी हैं, कई जगह 20 जो है जवान है, तो यंग ऑफिसर या जीसीओज होते हैं जो उनके कमांडर होते हैं। तो एक ऐसी ही पोस्ट पर नदर्न ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारे एक ऑफिसर थे जो कि कुछ कारण से थोड़ा हरकत कम कर दिया उन्होंने। मतलब बिकॉज वहाँ ग्लेशियर में हरकत बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो हमने उनके ऊपर भी बोला हुआ था कि जेसीओ साहब भी बताएंगे कि भाई ऑफिसर कैसे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जेसीओ साहब ने बताया कि भाई थोड़ा सा जो है ऑफिसर साहब की हरकत थोड़ी कम हो गई है। तो फिर उनको इमिडिएटली हमने जो है कंपनी हेडक्वार्टर में बुलाया, और अगले दिन हमने जो है पूरा चेक किया गया। तो थोड़ा उसमें कुछ हमें दिक्कतें, जो डॉक्टर ने चेक किया, तो हमने ये निर्णय लिया कि उनको वापस बुलाया जाएगा। और वो सियाला अपने कंपनी में शाम को पहुंच गए, कंपनी हेडक्वार्टर में जहां हेलीपैड है। और अगले दिन सुबह सुबह हेली उधर लैंड कर रहा है और वो अपना कोट पहन रहे हैं, लेकिन कोट पहनते पहनते ही वो इमिडिएटली कोलैप्स हो गए। और बाद में फिर पता चला कि उनको जो है स्ट्रोक हुआ, और स्ट्रोक की वजह से वो कहीं खून का थक्का जो है दिमाग में कहीं ऐसी जगह लॉज हुआ, और इससे इमीडिएटली उनकी जो है डेथ हुई। तो कई बार क्या होता है, लेकिन हमने ग्लेशियर में ये निर्णय लिया था कि हम अपनी कैजुअलिटीज़ मिनिमम करेंगे, कि कम से कम कैजुअलिटी हमारी होनी चाहिए, और हमने बहुत तैयारी की थी। तो पूरे ग्लेशियर टेन्योर के दौरान सिर्फ एक ये कैजुअलिटी हुई हमारे पहले इंडक्शन में, एक ऑफिसर की कैजुअलिटी, वो भी जब हमने सब कुछ किया, मतलब पहचान लिया गया कि भाई थोड़ा कोई दिक्कत है, और उनको वापस भी लेना है, कि हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया था उधर। लेकिन आई थिंक जब वक्त आता है, मतलब ऐसी अवस्थाओं में, तो तब
एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सेकेंड इंडक्शन में था, विंटर्स का समय था, और शाम तकरीबन रात को कोई 1:30-2 बजे के आसपास मुझे बताया गया कि एक जवान की हालत काफ़ी ख़राब है और उनको हैपो है। हैपो में क्या होता है कि आपके लंग के अंदर प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, तो आपके लंग्स में पानी चला जाता है, और अगर आपको उस पर सबसे ज़्यादा कुछ दवाई आपको दी जाती है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको उनको लोअर एल्टीट्यूड पे लाना होता है। लोअर एल्टीट्यूड पे अगर ले आएंगे तो हाँ, बिकॉज एल्टीट्यूड की वजह से होता है, और हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वहाँ उनको एक जो है एक उनके लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, जो कि बिल्कुल इमिटेट करता है लोअर एल्टीट्यूड को, ताकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल सही हो। तो अब जरूरी था कि उनको इवैक्यूएट किया जाए, और रात को ये जरूरी था कि डॉक्टर उनका ख्याल रखें। तो तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास में मुझको बताया गया कि द डॉक्टर टोल्ड मी, उन्होंने बताया कि इनकी नब्ज नहीं मिल रही है। और मैंने ये ठाना हुआ था कि भाई मैं जितने जवान ले जाऊंगा, मेरी कोशिश ये है कि उतने जवान वापस आने चाहिए। तो मैंने पूरी अपने माइंड को स्ट्रांग रखा, एफर्मेशन रखा कि नहीं, तो मैंने डॉक्टर को बोला कुछ भी हो आप अपनी कोशिश करते रहिए। और अगले दिन मौसम का भी, क्योंकि मौसम की रिपोर्ट्स हमको मिलती रहती है, मौसम भी कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, तो साथ ही मैंने नीचे जो है अपने जो एविएशन ऑफिसर्स थे और जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनको बोला था कि भाई आप कोशिश करिए, थोड़ा सा भी आपको विंडो मिल जाए, ये बड़ा क्रिटिकल केस है, और अगर सुबह जैसे ही विंडो मिलती है अगर आप इनको इवैक्यूएट कर पाए तो अच्छा रहेगा। और तब उनकी नब्ज नहीं मिली, और तकरीबन सुबह 5 बजे के आसपास डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया कि अब नब्ज मिल गई है उन्हें। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह की भी जो है, और मॉर्निंग में वेदर ठीक नहीं था, और तभी मैंने कुछ टाइम के बाद में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी, और मुझको नहीं दिखाई दे रहा था, तो हेलीकॉप्टर उनको पायलट्स को थोड़ा सा थोड़ा स्कोप मिला, और इतनी कठिन और विषम परिस्थितियों में उन्होंने उनका इवैक्यूएशन किया। और तकरीबन 2-3 महीने के बाद जब मैं नीचे गया तो एक बड़े खाने के अंदर वो खुद मुझे मिले आकर, और वो डांस कर, मैंने और उन्होंने साथ में डांस किया। आपके लिए बहुत खुशी का, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और पूरे टेन्योर के अंदर, जबकि विंटर्स में थोड़ा एक अलग तरह का माहौल, वहाँ क्या होता है कि तकरीबन 30 दिन का ऐसा समय हुआ कि वहाँ बहुत तेज ब्लिजर्ड कंडीशंस, हवा बहुत तेज चली। तो जब हवा बहुत तेज चलती है, जो फ्रेश स्नो होता है वो बड़ा लाइट होता है। तो फ्रेश स्नो को अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है, चाहे आपने अपना घर एक छोटी हट बनी हुई है, तो अगर आप रात भर बर्फ को नहीं हटाएंगे तो सुबह जो है पूरा का पूरा आपका जो शेल्टर है, आपके जो हट है, वो पूरी बर्फ में दब जाएगी। आप अपना दरवाजा नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि पूरा बर्फ ने ढक लिया उसको। तो रात भर उठकर आपको जो है स्नो शावल से आपको वो बर्फ हटानी पड़ती है। तो बाद में आपको लगता है कि पूरा सुबह जब उठेंगे तो पूरा आपका हट नीचे है, और पूरा चारों तरफ जो है उसके आसपास जो है बर्फ इकट्ठा हो गया, बिकॉज हवा बिल्कुल साथ में उसको जो है हवा उससे अपना बर्फ से ढकती रहती है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ, और 30-35 दिन का अरसा बड़ा लंबा होता है, लेकिन उसके अलावा जवानों ने रात भर उठकर ये काम किया। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये रही कि उस वक्त सेकेंड इंडक्शन के दौरान कोई भी एक कैजुअलिटी नहीं। जितने जवान ग्लेशियर में गए वो सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित जो है वापस लौटे। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जैसे जो ये एरियाज होते हैं वो पूरा बर्फ़ से ढकी हुई होती है, -50 डिग्री जैसे कि आपने कहा, तो क्या ये रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को रहना ही है, अटैक्स होते हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, एक समय था जब वहाँ फायरिंग तो तकरीबन डेली होती थी, आर्टिलरी शेलिंग होती थी, डेली होती थी आर्टिलरी शेलिंग। शुरू में ग्लेशियर में 80s की बात है, 80s में इंडियन आर्मी ने ग्लेशियर को ऑक्यूपाई किया, और फायरिंग वहाँ कंटिन्यूस जो है चलती रहती है। आर्टी शेलिंग होती थी। आर्टी शेलिंग में क्या होता है कि आर्टी का जब गोला गिरता है तो बर्फ के अंदर चला जाता है। तो कई बार होता है कि एक वेदर भी एक आपका प्रोटेक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो चूंकि वो अंदर चला जाता है और अंदर फटता है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है ऊपर नहीं होता, आपको दिखाई देता है, वो काले गड्ढे पड़ जाते हैं और वहाँ सुराख हो जाता है, फिर वो बाद में भर जाता है सुराख, तो इतना डैमेज, इतना वो नहीं होता। मैंने ये भी देखा है कि ग्लेशियर में नेचर आपकी शायद मदद भी करता है, क्योंकि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जब फ्लाई करते हैं, और हम लोग चेतक चीता हेलीकॉप्टर्स हैं बहुत, उन हेलीकॉप्टर्स की जो सीलिंग है उससे भी मैक्सिमम सीलिंग से भी ऊंचा उड़ते हैं वो, और उसके अलावा वो अपना इतना अच्छा काम करते हैं
बहुत सारे क्रैशेस होते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि इन क्रैशेस में अक्सर पायलट्स बच जाते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो जनरली अक्सर मैंने देखा है कि और पायलट्स अभी का टाइम कितना डिफरेंट है 80s से अगर हम कंपेयर बहुत, आई थिंक मेरे विचार से आज के तारीख और पुराने समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के तारीख में काफ़ी सहूलियत है, बल्कि ग्लेशियर में जैसे एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सियाला एलपी है, जो बहुत ही मतलब एक सियाला पोस्ट है आगे जो है ग्लेशियर में, जो सबसे दूर वाली जो पोस्ट है, वहाँ तक सिर्फ जाने में आपको 1 महीने से ऊपर लगता है। सिर्फ जाने में आपको 1 महीने से ऊपर लगता है। तो मतलब इस तरह का बिल्कुल एकदम सेक्लूडेड हो जाते हैं आप कि अगर आपको वापस आना है तो कम से कम 30 डेज यू विल टेक टू कम डाउन। बट इमरजेंसी केसेस में अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो हेलीकॉप्टर से हम इवैक्यूएशन कर देते हैं, या कि सडनली कोई घर में कोई इमरजेंसी हुआ है तो फिर हेलीकॉप्टर से जो है इवैक्यूएशन हो जाता है। तो ग्लेशियर की तो बहुत सारी ऐसी जो है स्टोरीज हैं जिनको शेयर किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि CICT ऑपरेशंस में मैं काफ़ी रहा हूँ, तो उसके भी गोरखा के ऑपरेशंस बताइए। गोरखा के ऑपरेशन बताता हूँ मैं आपको। मैं उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर था हमारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स का, और हम लोग कश्मीर में तैनात थे। कश्मीर में कुपवाड़ा इलाके में, त्रेगाम के इलाके में हम लोग तैनात थे। तो वहाँ एक जगह है द्रंग्यारी, और उससे पहले एक यूनिट थी, तो यूनिट वहाँ से मूव हुई और उसके बाद हम उनकी जगह आए। तो शायद कुछ ऐसा माहौल बना कि शायद यूनिट यहाँ से चली गई है, तो उधर गांव में और बाकी ऐसा माहौल। और पाकिस्तान क्या करता है, जब इन्फिल्ट्रेशन करता है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो शायद इस तरह का उनको लगा कि भाई इधर कोई यूनिट नहीं। और गुरखाज का क्या होता है, हम बेसिक ड्रिल्स बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। तो जैसे रात को कोई हरकत नहीं होगी, कोई लाइट नहीं होगी, तो रात को अगर कोई आए तो ऐसा लगेगा कि कोई आदमी नहीं है उधर। तो उस समय बर्फ़ का सीज़न ख़त्म ही हुआ था, और ऊपर के जो पासेस थे वो पूरे बर्फ़ से ढके हुए थे, और इन्फिल्ट्रेशन होना थोड़ा बड़ा मुश्किल था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन शायद पाकिस्तान चाहता था कि मैक्सिमम इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, और उसको लगा कि शायद ये मौका है ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर वो इन्फिल्ट्रेट कराएगा तो। और शायद उनको ये यकीन था कि यहाँ कोई यूनिट शायद नहीं है। तो एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप, तो ये तो हमें बाद में मालूम चला कि ग्रुप है, बट मेरे पास रात को एक मैसेज आया कि इस तरह से था, और 3 लोग थे जो बिल्कुल नज़दीक आए। ब्रिज, हमारी एक पोस्ट है जो बिल्कुल ब्रिज के ऊपर है, एक नाला है वहाँ, कामिल नाला, और उसके ऊपर ब्रिज है, और बिल्कुल हमारी पोस्ट उसके ब्रिज के ऊपर है। तो उन्होंने कहा वो 3 आदमियों को देखा और पूरा हथियार के साथ, उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद जब वो भागने लगे तो फिर फायर खोला गया, और फायर के बाद में जो है उनकी 3 बॉडी है, बॉडी उधर है। तो ये रात को मेरे पास खबर आई, तो फिर मैंने अपने ब्रिगेड कमांडर को बताया, और मैं कहा सर मैं जा रहा हूँ। तो ब्रिगेड कमांडर ने बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ। तो हम वो वहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर थी वो पोस्ट। तो हम मैं और ब्रिगेड कमांडर साहब हम दोनों उधर पहुँचे। हमने देखा और बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग मिलिटेंट है, और मैंने बाकी सब यूनिट से उससे पहले चेक कर लिया था, तो कोई और पेट्रोल हमारे या कोई और हमारे जवान बाहर नहीं थे। तो सुबह उनको फिर, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मिलिटेंट्स क्या होता है कि कई बार अपने पाउचेस के अंदर ग्रेनेड को प्राइम करके रख देते हैं, तो उसका सेफ्टी पिन को निकाला, और वो क्योंकि जेब है तो वो सेफ्टी पिन पूरा रिलीज नहीं होता है। तो लेकिन अगर आप हिलाएंगे या उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो रिलीज हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे भी कई सारे केसेस, मतलब आईडी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इवन बॉडीज को भी बड़े केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। तो सुबह सुबह हमने पूरा जो है उनका पूरा चेक किया, तहकीकात की, और ब्रिगेड कमांडर साहब ने बोला कि अभी चलते हैं। तो मैंने उनको बोला मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ 3 आदमी नहीं आएंगे, इनके साथ और ना कोई अफसर होगा। तब तक मैंने अपनी और बाकी पार्टीज भी बुला ली थी, और हमने उस एरिया में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और उस दिन में शाम होने से पहले हमने 4 और मिलिटेंट उस जंगल के अंदर जो है हमने जो है 4 और मिलिटेंट मिले, जिनको हमने मारा। और उसके अलावा हमें ये भी पता चला कि कौन सा रूट था उनके पास, जो इन्फॉर्मेशन थी हमको ये भी मालूम चला कि शायद ये उससे बड़ा ग्रुप हो सकता है। तो जो उनका रूट था, कि हो सकता है कि कुछ रात को फायरिंग हुई है, तो हो सकता है कि कुछ लोग वापस भी शायद गए हों। तो जो हमारी फॉरवर्ड ट्रूप्स थी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो तैनात थी, हमने उनको भी इतला की, और 3 जो है मिलिटेंट्स जो वापस जा रहे थे उनको भी जो है उधर खत्म किया गया। तो आप पूरा देखिए, मतलब 3, 4 और 3, तो इतने मिलिटेंट्स एक ही ऑपरेशन के अंदर, बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन
हमारी कोई बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षा रही, और एक उस वक्त में शायद एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा ही। जैसे आप ऑपरेशंस को लीड करते हैं, सारा जो पूरा ऑपरेशन होता है वो सब कुछ आपको प्लान आउट करना होता है, आपके दिमाग में इंडियन सोल्जर्स होते हैं। एक चीज़ बस जानना चाहूँगी कि जो जवान, जो मिलिटेंट्स हम कहते हैं, जो अपोजिशन या फिर पाकिस्तान से जो आते हैं, क्या कभी आपके उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है? कभी आप लोगों की ऑन द वॉर फ्रंट में कभी? नहीं, कई बार, बहुत बहुत बार इंटरेक्शन होती है, क्योंकि कई मिलिटेंट्स को पकड़ लेते हैं। तो उनको जिंदा भी जो है पकड़ लिया जाता है, और उनसे हमारी बहुत डिटेल में बातचीत होती है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कहाँ ट्रेनिंग हुई। अक्सर मैंने ये पाया है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक तरीके से गुमराह कर रहा है, और मिलिटेंट्स स्वयं बोलते हैं, खुद अपने आप बोलते हैं कि उनको ऐसी पिक्चर पेंट की जाती है कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो है बिल्कुल इस तरह की ऐसी स्थिति है, मतलब वहाँ जो है, जो वहाँ लोग, वहाँ के बाशिंदे हैं, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है, और उनके साथ पूरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है। मतलब इस तरह की एक पिक्चर और वीडियोस दिखाए जाते हैं उन्हें। उनका पूरा एक ब्रेन वॉशिंग किया जाता है कि आपने बचाना है इन लोगों को। लेकिन जब वो खुद आते हैं और वो खुद देखते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है, आप अपना नमाज अदा करना चाहते हैं, आप अपना नमाज करिए, जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कोई किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो खुशहाली देखते हैं कश्मीर के अंदर, बनिस्बत जो उनका, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां वहां जो हालात है, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। और स्पेशली आज की तारीख में जब धारा 370 हटा दी गई है, और एक तरीके से वैली के अंदर नॉर्मलसी की अवस्था हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से नॉर्मलसी, बट नॉर्मलसी की अवस्था, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बिजनेस एक्टिविटीज। तो लोग, मिलिटेंट्स खुद ये बात बोलते हैं कि हमारी आंखें खुल जाती हैं आने के बाद में कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों को बताया। तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और कई मामलों में तो मैंने ये देखा कि जो गरीब तबका होता है, परिवार होता है, उनको बुला करके भाई आपको इतना पैसा दिया जाएगा और आप इस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और अगर इसमें आप चले गए तो आप शहीद हो जाएंगे, शहीद होंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और परिवार को हम इतना करेंगे, ये करेंगे। तो कई लोग इस, मतलब मॉनिटरी भी उनको इंसेंटिव दिया जाता है, और एक ब्रेन, तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बड़ा, मतलब उनका जो एक लड़ने का एक जो कॉज होता है, आई थिंक कुछ समय आने के बाद में वो कॉज खत्म हो जाता है। तो कॉज खत्म, उनको लगता है कि यहाँ तो हालत ठीक है, यहाँ तो हालत काफ़ी बेहतर है। जो आर्टिकल 370 के बाद क्या आपको लगता है चेंजेस आया है? सीज फायर क्या अभी भी है, या सोल्जर्स को अटैक किया जाता है? मैं ना सिर्फ आर्टिकल, उससे पहले भी जो है, मतलब अगर आप देखें, क्योंकि मैंने जो है 84 में मैं कमीशन हुआ, और सबसे पहली मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, अखनूर के इलाके में मेरी पोस्टिंग थी, जहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शुरू होता है, उस सेक्टर में मेरी जो है पोस्टिंग थी। तो मैंने वो वाकया देखा है, और तब हम पहली बार यात्रा के लिए गए थे, अमरनाथ यात्रा के लिए तब, और कश्मीर में रहा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल अवस्था थी। और ये मैं 85-86 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर 89 में जब ये मामला भड़का, तब फिर मैंने देखा। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि 6 बार मैं जो है कश्मीर में रहा हूँ, तकरीबन पूरी यंग सर्विस जो है उधर कश्मीर में, मैं एज अ यंग ऑफिसर, फिर एज अ कंपनी कमांडर, उसके बाद में स्टाफ में भी रहा, फिर यूनिट भी कमांड की, फिर मैंने अपनी किलो फोर्स एज ए जीओ से एज ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग वहाँ भी रहा। तो मैंने सभी स्टेजेस देखे हैं, मतलब मैंने बिल्कुल नॉर्मलसी देखी है, मैंने मिलिटेंसी को उभरते देखा है, मैंने मिलिटेंसी का पीक देखा है, और मैंने अब मिलिटेंसी का ऐसा अवस्था देखा है जब वो नीचे जा रही है। तो अभी आप देखेंगे, क्योंकि वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर सिचुएशन ठीक है, लेकिन उनको जो है थोड़ा सा ये इधर नीचे वाला इलाका है, क्योंकि जैसे गलवान में हुआ तो कुछ फोर्सेस को वहाँ भेजा गया, लद्दाख के सेक्टर पर भेजा गया, तो एक किसी उसके लिए थोड़ा सा गैप पैदा हुआ, और शायद उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। जैसे आपने कहा कि आपकी पोस्टिंग पहले कश्मीर में हुई है, ये जो पोस्टिंग्स होते हैं, क्या मतलब ये क्या सबसे केपेबल लोगों को सबसे टफ एरियाज पे भेजा जाता है? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। फौज में आई थिंक जो भी जाता है वो ट्रेनिंग के बाद में वो सब केपेबल होते हैं, सब जो है केपेबल होता है। लेकिन अवसर मिलना जो है, अवसर तो सबको तकरीबन समान अवसर मिला जाता है। लेकिन चूंकि मैं इन्फेंट्री में हूँ, इन्फेंट्री ज़्यादातर जो है
वो बॉर्डर के ऊपर जो है तैनात रहती है। बाकी सब सपोर्टिंग आर्म्स वगैरह वो भी उनका काम भी बड़ा अहम काम है, लेकिन हम लोग वी आर एट दी फ्रंट एज, नो वी आर दी कटिंग एज अगर मैं कहूँ, हम लोग बिल्कुल सामने रहते हैं। तो आपको बहुत अवसर मिलते हैं, उस अवसर पर आप क्या करें ये मेरे हिसाब से ये जरूरी है। तो आपके पास जैसे गुरखास ट्रूप्स हैं जिनको ग्राउंड की अच्छी नॉलेज है और आप वहाँ हैं, वो मोटिवेटेड है, आप किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, किस तरह से उनकी ड्रिल करती हैं। जैसे आप CICT के विषय में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि वहाँ तब तक फेंस आ गई थी, और क्या होता है हम लोग फेंस पेट्रोल करते हैं, तो सुबह सुबह जो है पूरा रात भर सब जगह अलग अलग एम्बुशेस लगे होते हैं, और सुबह फेंस पेट्रोल जाती है। फेंस पेट्रोल ये चेक करने जाती है कि कहीं फेंस कटी तो नहीं है या इस फेंस को पार तो नहीं किया गया। तो एक पेट्रोल ऐसे जा रही थी एक JCO के अंडर में, और उन्होंने एक जगह देखा रात को हल्की सी बूंदाबांदी, और उनको बिल्कुल क्लियरली लगा कि जब बूंदाबांदी होती है अर्थ के ऊपर तो वो क्लियरली पैटर्न बन जाता है, और उनको लगा जैसे कोई फेंस के नीचे से रैंग कर गया है। और तो उनको देखिए एक नजर होती है, अब ये भांपने की नजर है, जिस आदमी को पता है ग्राउंड के विषय में वही आदमी उस अवस्था को भांप सकता है। तो उन्होंने इसको देखा, अनुमान लगाया कि यहाँ लगता है, फिर पीछे देखा उन्होंने फेंस के उस पार, तो बड़ा क्लियरली उनको क्लियरली लगा कि इधर से, क्योंकि पूरा वेजिटेशन चेंज होता है, जहाँ से आप चलेंगे, जहाँ से आप रैंक कर जाएंगे, वो पूरा वेजिटेशन डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ट्रैकिंग किया, और उन्होंने फिर इमीडिएटली कॉल किया कि लगता है कि यहाँ से जो है कोई अंदर फेंस के अंदर आया है। तो हमने उन्होंने उधर से ही क्लोज किया, अपने आदमी लिए, और साथ साथ उसको ट्रैकिंग शुरू किया कि भाई इसको इस तरफ फेंस के कहाँ गए, और इमीडिएटली उन्होंने, और विद इन जो है 15-20 मिनट के अंदर उनका आमना सामना हुआ मिलिटेंट्स के साथ में। वो उधर क्योंकि थके थे तो उन्होंने अपना एक रेस्टिंग प्लेस बनाया हुआ था, और 2 आदमी उनके ड्यूटी पर थे। तो फायर फाइट हुआ, और उस फायर फाइट में हमने 4 मिलिटेंट, तो उन 4 को खत्म किया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें आई थिंक ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है, ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है, मोटिवेशन बहुत मायने रखता है, आपकी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आप कितना फॉलो करते हैं वो चीज़ बहुत मायने, और टेक्नोलॉजी मायने रखती है। आज के तारीख में टेक्नोलॉजी, आपके पास आज नाइट विजन डिवाइसेस हैं, आपके पास आप जो है इस तरह के वेपन्स हैं जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड है, एरिया वेपन्स है आपके पास में। तो आजकल आई थिंक टेक्नोलॉजी एवरीथिंग कम्स टुगेदर टू हेल्प, एंड आई थिंक मैं समझता हूँ कि शायद पूरे दुनिया में आज जितना एक्सपीरियंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का है और इंडियन आर्मी का, वो कोई एक्सपीरियंस दुनिया में कहीं और नहीं है। और आज लोग बाग पूरे सभी सेनाएं जो है हमसे सीखने के लिए आती। जंगल वॉरफेयर, हमारा काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल है CIJW मिजोरम के अंदर, तो वहाँ वारंटे में पूरे मतलब चाहे वो US है, UK है, अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, वो सभी कंट्रीज आकर हमसे सीखती है। ग्लेशियल वॉरफेयर है तो कोई नहीं जानता, सिर्फ हमारी आर्मी है जो ग्लेशियर के ऊपर तैनात है। तो एक ऐसी चीज़ है जिन पे पूरी दुनिया आती है और हमसे सीख लेती है इसके विषय में। जैसे आपको परम विशिष्ट मेडल मिला है, इसका क्या मीनिंग होता है, किस चीज़ के लिए मिलता है? क्योंकि हम लोग हम सुनते तो हैं न्यूज़ में, हम लोग बचपन से देखते हैं, उसका क्या वैल्यू है, कितना मीनिंग है और किस चीज़ के लिए ये दिया? देखिए, अवार्ड जो है एक जरूरी है फौज में कि अब अगर आप उत्कृष्ट काम करते हैं, अगर आप बहादुरी दिखाते हैं तो लाजमी आपको जो है उसके लिए अवार्ड आपको नवाजा जाना चाहिए। तो आर्मी में 2 तरह के अवार्ड है। एक तो ब्रेवरी अवार्ड्स है जो कि गैलेंट्री एक्ट के लिए चक्रा सीरीज बोलते हैं। जैसे आपका शौर्य चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, वीर चक्र, परम वीर चक्र, महावीर चक्र, तो ये सब जो है ये चक्रा सीरीज है। दिस इज गैलेंट्री अगेंस्ट एनिमी, सो दिस इज गैलेंट्री अगेंस्ट एनिमी, मतलब लड़ाई का माहौल है तब आप जाते हैं। तो तब जैसे आपने देखा होगा 1971 वॉर, 65 वॉर में, तो इन वॉर में अब उनको जो है ये चक्रा सीरीज दी जाती है। जो CICT है इसमें आप लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे जो सिटीजन्स है जैसे जम्मू कश्मीर में जो कि जिनको बरगलाया गया है तो उनके खिलाफ है, पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं उनके खिलाफ है। तो एक पूरी तरह से क्लासिकल वॉर नहीं है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट की जो है स्टेज है। ऐसे में आपको जो है दिया जाता है, आपको सेना मेडल मिलता है, आपको शौर्य चक्र मिलता है, कीर्ति चक्र, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ब्रेवरी अगेंस्ट द एनिमी। जब आप मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, जब आप सब कुछ मतलब आप जो है एक ऐसे लेवल पे जैसे आप ब्रिगेड कमांडर है या डिविजनल कमांडर है, तो आपको पूरा संपूर्ण देखना पड़ता है, आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको पूरा एनालाइज करना पड़ता है, फोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एक पूरा टैक्टिक्स होती है। तो उसके लिए फिर आपको जो है एक बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर बहादुरी नहीं, बट उसमें आपकी स्किल के लिए
तो एक युद्ध सीरीज, जैसे युद्ध सेवा मेडल YSM जो है होता है, तो इस तरह के अलग अलग मेडल आपने खास अभी मुझको जो है पिछले हाल में महामहिम राष्ट्रपति जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। तो ये सबसे ऊंचा मेडल है आपको उत्कृष्ट सैन्य सेवा देने के लिए। तो दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड दैट वन कैन बी bestowed with for a distinguished service of the highest order। तो और मुझे इस बात की भी खुशी है कि और ये अवार्ड क्या है, एक किस्म से कलेक्टिव अवार्ड हो जाता है, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं बट आपके साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक किस्म से कलेक्टिव जो है अवार्ड है, बट यू आर एट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आपके दिशा निर्देश में सब कुछ हुआ है, तो इसलिए आपको जो है दिया जाता है। मेरे साथ सबसे अच्छा जो मुझे जो लगता है कि हर एक रैंक पर मुझको कोई ना कोई अवार्ड मिला है। जब मैं कैप्टन था, एक यंग ऑफिसर था, तो एक हमने कंचनजंगा मैसिव के ऊपर एक पर्वतारोहण किया, उसके लिए मुझको जो है आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड मिला। उसके बाद CI ऑप्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, जो JNK में था, उसके लिए मुझको जो है चीफ्स कमेंडेशन कार्ड मिला। बारामूला, उरी, इस इलाकों में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए उस वक्त। उसके अलावा फिर मैं ग्लेशियर में जब रहा तो तब मुझको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला एज अ कर्नल। तो एज अ कैप्टन, देन एज अ मेजर, देन एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल फॉर सियाचिन ग्लेशियर, देन एज अ कर्नल जब मैं यूनिट कमांड कर रहा था CICT में, तब मुझको सेना मेडल मिला। और उसके बाद जब मैं ब्रिगेडियर था, ब्रिगेड कमांडर था, तब मुझको जो है विशिष्ट सेवा मेडल मिला, VSM मिला। फिर जब मैं JOC था किलो फोर्स में, तब मुझको युद्ध सेवा मेडल मिला। उसके बाद जब मैं 33 कोर में था, जो कि गलवान के बाद एकदम, बिकॉज हमारा जो सिक्किम का इलाका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, वहाँ जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और अभी जो है अपनी सदर्न कमांड सबसे बड़ी कमांड है पुणे में, पुणे की जो है सबसे बड़ी कमांड है और सबसे पुरानी कमांड है, तो वहाँ सेवा के लिए जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। सो आप एक बहुत बड़े एसेट है सर कंट्री के लिए। एक आपके इतने सालों की डेडिकेशन और सर्विस, वी डेफिनेटली सैल्यूट यू फॉर द सेम। थैंक यू। आपसे अभी हमने काफ़ी कहानी सुनी मेडल्स की, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि आप सोल्जर्स जब जाते हैं, घर से निकलते हैं, एक घर ही होता है जिसको आप छोड़ के जाते हैं, और यू ट्रैवल सो मच, आप हर जगह ट्रैवल करते हैं, और इतने सालों का लंबा वो होता है। तो जो बिहाइंड ऑफ इट एक वाइफ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्मी में खासकर, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है, प्लस उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप कैसे, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, आप कितने इमोशनल है, एंड ऑल्सो लाइक हाउ यू मेट हर एंड ऑल। आई थिंक आपने बड़ी अच्छी बिकॉज ये एक बहुत अहम पहलू है हमारी लाइफ का, क्योंकि आप तो आगे बॉर्डर पर होते हैं, लेकिन आपका परिवार आपके पीछे है और आपके लिए चिंता, उनको बहुत चिंता रहती है। तो ऐसे में आपके परिवार को और खासकर आपकी पत्नी का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एंड आर्मी में लेडीज़ जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेवारी, बच्चों को बड़ा करना, पालन पोषण करना, पढ़ाई लिखाई देखना, घर को चलाना, वो सब हमारी अनुपस्थिति में हमारी महिलाएं करती हैं। तो और खासकर मेरी पत्नी का नाम शालिनी है, आज हमारे बीच में नहीं है वो। 1 अप्रैल 2020 को उनका देहांत हुआ। क्रोनिक रीनल फेलियर उनको हो गया था, किडनीज फेल हो गए थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बावजूद इसके उन्होंने 14 साल तक वो रही, और शुरू में विदाउट एनी इंटरवेंशन, मतलब उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू का शॉक होने के बाद, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर सडनली जब आपको पता चलता है कि इस तरह की एक लाइफ थ्रेटनिंग डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है, तो शुरू के शॉक के बाद में उनको लगा नहीं, उनका होना बहुत ज़रूरी है, कुछ सालों तक उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे छोटे थे और अपने करियर में मैं भी अच्छा कर रहा था, और वो चाहती थी कि किसी मुकाम पर, क्योंकि एक पत्नी के लिए ज़रूरी है कि उनका पति किसी मुकाम पर पहुँचे। तो आई थिंक उन्होंने ये ठान लिया कि वो रहेंगी, और तकरीबन शुरू के 4 साल तक उन्होंने बोला कि कोई मतलब डायलिसिस भी नहीं हुआ। शुरू में जब उनका क्रिएटिनिन लेवल था तकरीबन 4.6 था, जो कि बहुत हाई क्रिएटिनिन लेवल था। फॉर डॉक्टर्स ने तभी बोला था कि आप इमीडिएटली डायलिसिस शुरू कराइए या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। तो अनफॉर्चुनेटली परिवार में कोई उस ब्लड ग्रुप का था नहीं, और उस वक्त ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत ज़रूरी थी।
और शुरू में उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब ऐसी अवस्था आएगी, जब मुझे दिक्कत लगेगी, तब डायलिसिस शुरू कराएंगे। तो 4 साल तक बगैर किसी उसके उन्होंने बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो है, योगा शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल किया, उसके अलावा खाने पीने को कंट्रोल किया, और रेकी ग्रैंड मास्टर बनी। प्राणिक हीलिंग का हम दोनों ने प्राणिक हीलिंग बेसिक एडवांस साइकोथेरेपी कोर्स किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें की। कहीं ना कहीं शायद ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ कुछ ना कुछ लेवल पर काम कर रही थी। और उसके बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ और अच्छा मैचिंग था किडनी का, तो वो तकरीबन 9 साल तक रही। फिर तकरीबन ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 साल के उपरांत ये पता चला उनको हेपेटाइटिस सी हो गया था। वो कई बार क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या डायलिसिस के दौरान जो है ये हेपेटाइटिस सी हो जाता है, और हेपेटाइटिस सी की आप दवाई नहीं दे सकते, वो दवाई किडनी के लिए, ग्राफ्टेड किडनी के लिए ख़राब होती। तो क्या हुआ, उसमें उनका थोड़ा लिवर भी डैमेज हुआ। फिर बाद में एक नई दवाई आई सोफोसुविर, तो उनको एडमिनिस्टर किया गया, तो वो हेपेटाइटिस सी से बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन तब तक लिवर भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। और बाद में दोनों, मतलब वो जो दवाई दी गई उसका भी कुछ परिणाम, दुष्परिणाम जो है ग्राफ्टेड किडनी के ऊपर हुआ रहा। तो फाइनली मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर से उनका 1 अप्रैल 2020 को देहांत हुआ। लेकिन अंतिम समय तक पूरा उन्होंने साथ दिया, तो घर को पूरा संभालना, तो उनके रहते रहते 14 साल तक रही, और बहुत कितने इंजेक्शंस, 13 बार उनकी सर्जरी हुई। और इसके बावजूद हमेशा हंसती रहती थी, और उनको अब अगर पूछे कि वो कैसी है, वो हमेशा कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये भी हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में जो शक्ति है, शक्ति का प्रतीक जो है देवी है, तो फेमिनिन इज एक्चुअली द मार्क। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनको देखकर मुझे लगा कि वाकई जो शक्ति अगर कहीं है तो वो फेमिनिज्म के अंदर शक्ति है। बिकॉज जो शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया, जो शक्ति उन्होंने दिखाई 14 साल, इस तरह के पेन्स, ट्रायल्स, ट्रैबुलेशंस को बर्दाश्त किया, लेकिन अपना काम बदस्तूर किया उन्होंने, पूरी तरह से सपोर्ट किया। हमारे बेटे की शादी जब वो थी, वो रही, बेटी का रोका हुआ, और लास्ट पार्टी जो उन्होंने अटेंड की वो मेरे इस रैंक के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लिए वो लास्ट पार्टी, तो मुझको भी इस मुकाम तक उन्होंने जो है पहुंचाया। और मैं बड़ी पर्सनल चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उनको मालूम था कि मैं आर्मी कमांडर बनूंगा, तो आर्मी कमांडर मतलब चीफ के बाद में इज़ द नेक्स्ट दिसिंग हाईएस्ट लेवल। तो आर्मी कमांडर की रैंक उन्होंने अपने आप, जब वो थी तो उन्होंने खरीद कर मंदिर में रखी थी, और मुझे बोला था कि जब आप आर्मी कमांडर बने तो आप इस रैंक को पहने। तो मतलब वो उसका भी इंतजाम जो है पूरी तरह से करके गई। तो मुझको लगता था, जैसे आप देखते हैं कि जो प्रिंस राम वो 14 साल वनवास में गए, और उसके बाद में जब वापस लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। प्रिंस सिद्धार्थ 7 साल तक तप किया उन्होंने, 7 साल के बाद जब वो लौटे तो वो ही वॉज एनलाइटेंड वन, ही वॉज बुद्ध, ही वॉज भगवान बुद्ध। सो मैं उनको ये बोलता था कि आपने 14 साल तक तप किया है, परिवार के लिए तप किया है आपने, तो आप भी उसी कैटेगरी में हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जो है मतलब एक ऐसा मुकाम, आप मोक्ष प्राप्त हो आपको, आप इस काल चक्र से जो है मुक्त रहें पूरी तरह से। तो मैंने कहा जब भी ऐसा वक्त आए तब आप क्लियर, मतलब यू शुड नॉट क्लिंग टू लाइफ, यू मस्ट ब्रेक फ्री। एंड आप हमारी तरफ से अब चिंता ना करें, आपने तो जो शायद मतलब नॉर्मल नहीं करते हैं, आपने बिल्कुल वो सब कुछ किया है, आप सब कुछ, हम सब बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े हैं, सब बिल्कुल ठीक है। शायद अंतिम समय में उनको याद रहा, वो वेंटिलेटर पर चले गए थे। हम जानते हैं कि कोविड में अगर कोई वेंटिलेटर पर गया तो वापस नहीं आया, पर जबकि वो 14 साल तक इस हालत से जूझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो वेंटिलेटर से बाहर आई, और बाहर आकर उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझको बोला अब मैं जा रही। तो ये शब्द कहना अंतिम समय पे, जब आप अपनी मौत को देख रहे हैं, अपने पार्टनर को बुलाकर कहना, मैं कहता हूँ शायद ये आपकी तरह ब्रेव थी वो। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव थी। तो क्योंकि उस वक्त ऐसे बहुत सारे मैंने अपॉइंटमेंट्स किए जो बहुत बिजी अपॉइंटमेंट्स थे, तो कई मेरे ब्रदर, साथ वाले ऑफिसर्स पूछते थे कि आप कैसे हैंडल करते हैं, वाइफ इतनी बीमार है फिर भी आप जो है, और बहुत इतना बिजी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मेरी वाइफ के अंदर वो शक्ति है, वो हमेशा हंसती रहती। जिस दिन वो हंसना बंद कर देंगी और उनको दुख और तकलीफ हुई, उस दिन फिर मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरी जो शक्ति और मेरे काम करने की काबिलियत वो उनकी शक्ति से आती है। तो ये एक ऐसा संस्मरण है कि उन्होंने ये कहकर गई कि भाई अब मैं जा रही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि शायद एक बहुत ही, जो आदमी मतलब अपनी मौत को देख के और उसको एक्सेप्ट करे,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ शी वॉज अ वेरी एलिवेटेड सोल। वो एक अलग लाइक आप जिस फील्ड में है उसमें भी उनको भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। बिल्कुल, आर्मी में बिल्कुल एक जितना सेक्रीफाइस हम करते हैं शायद उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है फैमिलीज करती हैं, उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार का भार किसी सेलिब्रेशन और साथ टेंशन भी है कि आपके हस्बैंड जो है फॉरवर्ड एरिया पर हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस में है, चैलेंजिंग कंडीशंस में है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में है, तो वो चिंता भी है आपको और अपने परिवार का भी आपने बड़ा करना। तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका और बहुत ही उनका ये उनकी कुछ था कि जब वो चाहती थी कि बेटी की शादी हो, तो आज बेटी की शादी हो गई 1 साल के अंदर। चाहती थी कि बेटा सेटल हो जाए, तो बेटा पूर्णतया सेटल है। और वो चाहती थी कि घर देहरादून में बने, तो ये भी एक मेरा कारण है कि मैंने घर देहरादून में बनाया। चाहती थी कि घर जंगल के पास होना चाहिए, नदी के पास होना चाहिए और मसूरी का व्यू होना चाहिए। तो जहाँ मैं घर बना रहा हूँ अभी धौलास में, वो बिल्कुल जंगल के पास है, नदी पर है, टॉन्स नदी और नून नदी दोनों है उधर नज़दीक, और मसूरी का बहुत अच्छा व्यू है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने ही शायद ऐसी जगह तलाश की, तो आज हम उनकी मौजूदगी का एहसास करते हैं और शायद वो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से आज भी हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करनी। क्योंकि लाइफ और जिंदगी मौत तो किसी के हाथ में नहीं है, तो डेस्टिनी किस तरह से हैंडल किया हमें लेकर जाती है कहाँ तक। जी। और मैं ये जानना चाहूँगी आपका डे टू डे लाइफ कैसे होता है, फिटनेस पे आप कैसे ध्यान देते हैं जी, आपका डाइट क्या होता है? जी देखिए, मतलब मैं जैसे आप 60 साल 60 ईयर्स पे जो है आप एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होता है, तो आर्मी में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को फिजिकली फिट रखें और एज ए लीडर, क्योंकि सब लोग आपकी तरफ देखते हैं। मैं आर्मी कमांडर हूँ, तो सदर्न आर्मी इज द 7th लार्जेस्ट आर्मी है पूरी दुनिया की अपने आप में। सो सब आपकी तरफ देखते हैं, तो आपको अपना जो है, और आप इस तरह से मतलब आपका रूटीन इतना बिजी रहता है। मतलब जब एज ए तकरीबन 1.5 साल में रहा सदर्न आर्मी कमांडर, आपका प्रोग्राम मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, मतलब थोड़ा भी बिल्कुल टाइम, और रात को शायद 5 घंटे 4.5 से 5.5 घंटे की नींद जो होती है और कंटिन्यूस आपका प्रोग्राम रहता है। तो उसमें अगर आप अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे तभी आप जो है इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसका सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। और सदर्न कमांड तकरीबन, मैं जब बड़ी बोल रहा हूँ तो तकरीबन हाफ ऑफ इंडिया 41% ऑफ इंडियन लैंड मास इज विद सदर्न कमांड, और आपको हर यूनिट में जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, कहीं इंस्पेक्शन करना है। तो मैंने अपने तकरीबन साल से ऊपर के टेन्योर के दौरान पूरे अर्थ का जो है सर्कुम नेविगेशन 2 बार कर लिया। 86,000 एयर माइल मैंने किया, तकरीबन 550 घंटों से ज़्यादा जो है एयर ट्रेवल किया है मैंने, एयर ट्रेवल किया है और कंटिन्यूस एयर ट्रेवल किया है। तो उसमें आपको अपना एक रूटीन तय करना होता है, अपने खाने पीना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, और मैं योगा करता हूँ। मैं अभी भी इस एज में भी तकरीबन डेली दौड़ता हूँ और मेरा 1.5-2 घंटे का योगा का रूटीन है। तो उस रूटीन की वजह से आज भी 60 साल की उम्र में मुझको लगता है, हालांकि मैं रिटायर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं रिटायर हूँ, मैं री-अटायर्ड हूँ। मतलब अभी जीवन काम खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कि काम का एक दौर जो है उसका जरूर जो है एक तरह से जो है फिनिश हुआ है, लेकिन एक नया दौर शुरू हो गया है। और ये दौर बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है, क्योंकि आजकल जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं, आज भारत जिस तरह प्रगति कर रहा है, आज के दौर में हमारे पास एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि 60 साल की जो उम्र है, शायद ये 60 और 70 साल की जो उम्र है, वो काम करने के लिए और सोसाइटी को देने के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए इससे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिव एज कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके बच्चे सेटल हो गए, घर आपका हो गया है, सब कुछ है आपके पास में, तो आपको जो है कोई लायबिलिटी नहीं है। उसके अलावा आप आर्मी कमांडर रिटायर हुए, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, थिंग टू प्रूव। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक्सपीरियंस है, और अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो आपके अंदर पूरी तरह से एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मतलब मैंने अपने स्वयं के लिए निर्धारित किया है कि मैं अपने अंतिम श्वास तक काम करूँगा, फॉर सोसाइटी बिल्डिंग एंड फॉर मेकिंग अ डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस इन द सोसाइटी, and for nation building in my personal capacity or any official capacity that is entrusted to me. But this is my contribution to this country, which has given me so much. Today what I am is because of this country, because of this nation, and because of my family. I think the family, and like I said, my family plays such an important role. My wife moved away, but my children
came in. You know, my son and my daughter, my son-in-law, my daughter-in-law, like they are looking after me as if, you know, I'm an infant. So, you know, their love, their affection, their care matters a lot. And I think that gives you the energy to continue giving back. I think they are a huge, strong, solid support system. Any cheat meal which you take? Yeah, definitely. देखिए, I think एक उसमें डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, लेकिन अपने शरीर को कभी कभी शॉक भी देना चाहिए. तो जैसे घर में रहता हूँ तो मैं बिल्कुल कंट्रोल रहता हूँ. आप बाहर गए तो फिर कुछ नहीं, मतलब फिर आप जो है वो आप अपना खाइए. तो इससे क्या दूसरे के लिए भी असुविधा नहीं होती है और आपके लिए भी जो है एक माहौल. बॉडी को आई थिंक द बॉडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड. तो इसलिए चीट मील भी रहता है, बीच बीच में चीट मील रहता है. मूवीज देखते हैं आप? मूवीज आई थिंक एक वक्त हम शालिनी हमारे जो श्रीमती है उनको बड़ा शौक था. तो जब वो थी तो फर्स्ट रिलीज देखते थे. फ्राइडे को होता है दिल्ली में, उनको मालूम था कि कहाँ टिकट मिलनी है, तो हम पक्का देखते थे, मूवीज देखते थे. लेकिन उनके जाने के बाद शायद मैंने अभी तक कोई एक मूवी नहीं देखी है. तो वक्त भी शायद नहीं था, अभी थोड़ा सा वक्त मिला है. तो अभी शायद फिर दोबारा मूवीज का सिलसिला एडवेंचर विच तो पूरी लाइफ आपने एडवेंचर किया है. कहीं घूमने का प्लान है आपका? आई थिंक दूर दराज के इलाके में, हमारे यहाँ सिर्फ अपने देश में ही देखने की इतनी ज़्यादा है. यू नो, हमारी कंट्री ऐसी है, यहाँ डेजर्ट भी है, यहाँ ग्लेशियर भी है, यहाँ एल्टीट्यूड भी है, यहाँ सी कोस्ट भी है. तो इस देश में देखने की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. तो मैं मतलब कोशिश करूँगा कि देश के कोने कोने तक, जहाँ नहीं, वैसे तो आर्मी ने स्वयं मुझको उस देश के कोने कोने तक घुमाया है, लेकिन जहाँ शायद नहीं जा पाए तो वहाँ जाने की डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा. ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में मेरी खास दिलचस्पी है, रुचि है. तो मैंने माउंट राथोंग क्लाइंब किया है और HMI से बेसिक एडवांस कोर्स भी किया है. तो ट्रैकिंग के अंदर मेरा ट्रैकिंग करूँगा ऐसी जगह जहाँ नहीं जा पाया. तो ट्रैकिंग का भी मेरा अपना है, साइकिलिंग करता हूँ और दौड़ने का शौक है. तो ये मतलब अब ये मौका मिला है कि अपने काम के अलावा जो है, जो आप नहीं कर पाए शायद, जिसके लिए आप तवज्जो नहीं दे पाए, समय नहीं दे पाए, तो अब बड़ा अच्छा समय देने का अवसर है जब आप दिस थिंग. लेकिन ये जरूर है कि अपने को मैं पूरी तरह से बिजी और फिट रखूंगा और काम करते रहूंगा. ये बिल्कुल. सर, एक डेयरिंग गोरखा स्टोरी सुनना चाहेंगे सर? सर डरावना सा डेयरिंग स्टोरी. ओके, मैं आपको बताता हूँ. मेरी पहली पोस्टिंग में जहाँ हम थे, जैसे मैंने बोला कि वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शुरू हुआ, तो वहाँ फायरिंग होने लगी थी. जब हम शुरू में गए तो फायरिंग नहीं होती थी, बीच में फायरिंग की बहुत सारी घटना होने लगी. हमारी एक पोस्ट थी जो बिल्कुल अंदर थी, मतलब इट्स लाइक एक था जो बिल्कुल अंदर है, और मतलब आप देखिए तीनों तरफ से शायद पाकिस्तान पोस्ट ने हमको घेरा हुआ था. तो काफ़ी इफेक्टिव फायरिंग करते थे वो हमारे ऊपर. तो एक बार ऐसे ही इफेक्टिव फायरिंग हुई और शाम को जैसे मैं वहाँ जाता था तो तब तो इतना ज़्यादा मतलब मुझको याद है कि एक रिवर्स एरिया में 4 हमने बांस लगाया हुआ था, उसके ऊपर एक सिजाई शीट बिछाई हुई थी और उसके ऊपर एक छाना था, जैसे एक झोंपड़ी टाइप होती है, इस तरह की एक छत थी और उस पर हम सोते थे. तो जब रात को फायरिंग होती थी या दिन में भी, तो उसका जो रिकोशे होता है, मतलब वो बैक में है तो डायरेक्ट फायरिंग नहीं होगा, लेकिन बुलेट जब किसी पत्थर से या किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो डायरेक्शन कहीं भी बदल सकती है. तो आपको रिकोशे कहीं भी लग सकता है. शुरू में थोड़ा सा लगता था, लेकिन उसके बाद तो फिर वो बड़ा नॉर्मल जो है अवस्था हो गई. तो एक जगह हम अपनी MMG को, मीडियम मशीन गन को शिफ्ट करना चाहते थे. तो हम उसको मीडियम मशीन गन को उठाया और हम अपने जो हमारी क्रॉलिंग ट्रेंच थी, ट्रेंच के दौरान हम ले गए और हम उसको फिट कर रहे थे. तो थोड़ी देर के लिए हम एक्सपोज गए, तो उन्होंने हमको देख लिया ये कार्रवाई करते हुए, तो पूरा पिन पॉइंट किया उन्होंने, हमें मतलब उठने का अवसर नहीं दिया. तो उस समय मुझे याद है कि हमारे एक सीनियर गोरखा थे, वो इतना नाराज हुए और उन्होंने मुझे बोला, सर आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और खुकरी से इनका सिर काट के लाता हूँ. तो उसको रोका हमने. ठीक है, लेकिन उससे मुझे ये ध्यान आया कि भाई यहाँ नहीं तो हमने किसी और जगह को पकड़ना पड़ेगा जहाँ से हम उनके ऊपर एक कारगर फायर करते हैं. तो रात के समय में हम बिल्कुल LAC के पास में, हम और जवान, मतलब एक बहुत ही दिलेरी वाला हमारा एक ऑपरेशन था. हम रात को गए उधर और उधर ID का खतरा भी जो है रहता था, बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक, और बिल्कुल एक बॉर्डर के ऊपर जो एक चोटी थी उसके ऊपर हम पहुँचे. वहाँ हमने उस MMG को साइट किया और वहाँ से दुश्मन की पोस्ट के ऊपर कारगर फायर किया, ट्रेसर राउंड फायर किए और उससे हमने उस पोस्ट को बर्बाद किया और उसको जलाया. तो ये एक बड़ी स्टोरी है, मतलब बहुत ही स्टोरी. मतलब एक जवान जो है, गोरखा का जो एक जवान है, वो अपनी खुकरी से असंभव कार्य जो है कर सकता है. मतलब दिलेरी, बहादुरी उसकी रग रग में बसी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने हमारे साथ शेयर किया.
एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आपने देखा इन दीज ईयर्स, सो मेनी ईयर्स ऑफ, हम देख रहे हैं कि हर जगह जो यूथ है वो कहीं ना कहीं डिसमोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है करियर को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आपने बांग्लादेश में भी देखा जो ऑनगोइंग सिचुएशंस चल रही है अभी, उसके पहले फ़लस्तीन में भी था, और जनरली बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चीज़ें हो रही है। आपको क्या लगता है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की बातें लोग करते हैं, हाउ डू वी लाइक गाइड दोज यूथ, और क्या पेरेंट्स को कैसे गाइडेंस करना चाहते हैं? अगर कोई आर्मी भी ज्वाइन करना चाहता है, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस, और किस तरीके से हम बचपन से ही बच्चों को उस चीज़ को डेवलप करें, तो उसके ऊपर आप क्या सच? आई थिंक ये बहुत ही आपने अहम सवाल पूछा, और आजकल की जो स्थिति है उसमें आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। तो मुझे जो लगता है, एक फैमिली इज द लोएस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे आपके, जो मतलब एक फैमिली अगर उसमें आपने संस्कृति बच्चों के अंदर सही डाली है तो आपकी फैमिली यूनिट स्ट्रांग हो जाती है, और उस स्ट्रांग फैमिली यूनिट से आपकी सोसाइटी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग सोसाइटी से आपका कंट्री स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रेंथ जो है, एक देश की जो स्ट्रेंथ है, एक देश की जो ताकत है, वो लोअर लेवल पे अगर आप देखें वो फैमिली से ताकत शुरू होती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपने सवाल पूछा बहुत ही अहम सवाल है। तो आई थिंक आजकल के पेरेंट्स को आई थिंक अपनी सभ्यता के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में जानना और बताना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके साथ कोई जुड़ गया तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आजकल, जैसे बोलते हैं मोबाइल या टीवी, मैं समझता हूँ ये सब जो है टेक्नोलॉजी की जो दौड़ है उसको आप रोक नहीं सकते। तो मोबाइल है और ये भी है, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से सदुपयोग करें तो आई थिंक एक मोबाइल भी बहुत अच्छा काम करता है, एक टीवी भी बहुत अच्छा काम करता है। आप देखिए बच्चों का नॉलेज लेवल और अवेयरनेस कितना अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि बच्चा जब यंग है तो आपने वो कंटिन्यूसली मोबाइल को देख रहा है। आई थिंक आज जरूरी है एक बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए बच्चों की। तो बच्चों को आप जितना बाहर नेचर के पास ले जाएं, ठीक है, जितना एक फिजिकल एक्टिविटी कराएं, वो निहायत जरूरी है आजकल। आप उनको समय दीजिए। तो फाइनली अगर मैं कहूँ, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या चीज है जो डिस्टिंग्विश करता है एक सिविलियन और एक फौजी के अंदर, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन फौज का बेडरॉक है। आप डिसिप्लिन हटा लीजिए फौज से तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो वही एक डिसिप्लिन मुझे लगता है कि आज हमको अपने सोसाइटी में लाने की अहम जरूरत है, बचपन से ही लाने की जरूरत है। और डिसिप्लिन क्या होता है कि हम लोग उनके साथ बच्चों को हम लेक्चर देते हैं, बच्चे लेक्चर से डिसिप्लिन नहीं आएगा। आई थिंक वी हैव टू वॉक द टॉक। एज ए पेरेंट्स, मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, आई थिंक आप करिए उस चीज को। अगर आप स्वयं मतलब हमेशा मोबाइल, मतलब आप आए ऑफिस से और फिर मोबाइल और टीवी देखा, तो बच्चा क्या, मतलब बच्चों को भी लगा भाई ये तो नॉर्मल है, मुझे भी देखना है। तो आई थिंक आप अगर उस डिसिप्लिन में रहेंगे, आपके बच्चे निरंतर आपको देख रहे हैं, तो जैसा आप करेंगे आपके बच्चे एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो करेंगे। पहला टीचर कहते हैं पेरेंट्स ही। बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे पहले तो आप आज के तारीख में मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत ही अहम जिम्मेवारी है। आप अपना बच्चा जो है तो वो तो बिल्कुल रॉ मटेरियल, आप जिस तरह से उसको ढालना चाहते हैं। तो आज लोग बोलते हैं आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, नहीं, आई थिंक इस ब्लेम को बच्चों के ऊपर डालना अनुचित। पेरेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा करियर लेकर के। देखिए, मैं ये भी बात है कि आप करियर से बहुत ज्यादा जो है, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं कि हम ये बच्चे के लिए ये भी कर दें, हम बच्चे के लिए वो भी कर दें। आई थिंक हम लोगों को जीवन एक बहाव की तरह है। आई थिंक बेहतर ये होगा कि उस बहाव के साथ हम एक सामंजस्य बिठाएं। वी शुड बी इन हार्मनी विद द डिवाइन ऑर्डर। तो अगर हम उसके मुताबिक चले, एकदम से बहुत दूर का नहीं, मतलब मैं आज ये सोचता हूं कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि मेरी 5 जनरेशन भी, क्यों, मतलब आज के लिए भाई आज इतना होना चाहिए कि देर सवेर उसके लिए आपको जरूरी। बच्चों को अगर आपने काबिल बनाया तो उनके लिए पैसा संग्रह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप जो है अपने जीविका और वो सब अपने आराम से चला सकते हैं अगर वो बिल्कुल लायक है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लाना चाहिए हमें। एक आई थिंक लाइफ को हल्का रखना चाहिए। आप संस्कार डालिए, आप डिसिप्लिन डालिए, आप अच्छी सीख दीजिए, आप उनको काबिल बनाइए। और आज भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में आप दिखा लीजिए, हर जगह जो है बड़ा अनिश्चितता का माहौल है। एक हमारा ही देश है जो प्रगति कर रहा है और आज एक माहौल अच्छा है और एक निश्चित माहौल है। और मेरे ख्याल से अगले कई सालों तक, कई दशकों तक भारत इसी तरह से तरक्की करेगा। तो मुझे लगता है कि हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन हालात का हमने
सही तरीके से सदुपयोग करना है और इस हालत के लिए तैयारी करनी है। और वो तैयारी आई थिंक परिवार से शुरू होती है, वो कल्चर से शुरू होती है, संस्कृति से शुरू होती है, वो पेरेंट्स से शुरू होती है कि किस तरह आप बच्चे को अपने परवरिश कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा शुरू होती है। एंड फाइनली आई थिंक कंट्रोल्ड लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ इज द थिंग। आई थिंक वी हैव टू समहाउ इंस्टिल। तो एनसीसी बहुत अच्छा, एनसीसी हो गया आपका, तो स्काउट हो गया, आई थिंक ये एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो डिसिप्लिन ट्रेनिंग है ये सब जगह जो है होना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप कुछ मैसेज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको दीजिए, और क्या एज अ लाइफ में पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए जनरली लोगों का? आप एज ए पर्सन, आपका क्या पर्पस ऑफ लाइफ था? व्हाट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन योर लाइफ आल्सो, एंड वन मैसेज फॉर द पीपल हु वुड बी हियरिंग यू। आई थिंक मैं जो कहना चाहूँगा, और स्पेशली देश के यूथ के लिए, आई थिंक हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है हमारे लिए कि हम एक बेहतर नागरिक बने। इंडिविजुअली हम बोलते हैं कि ये काम सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये सोसाइटी क्यों नहीं कर रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, क्या हम बेहतर नागरिक हैं? आज हम एक डेमोक्रेसी में हैं, हमको सभी तरह की सुविधाएं हमारे पास में है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है हमारे पास में। अगर ये सब स्वतंत्रता हमारे पास में, और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, अगर ये स्वतंत्रता हमारे पास में है, तो ये स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। क्या हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उन दायित्वों को जानते हैं? तो सबसे पहले उस दायित्व से परिचित। एवरी फ्रीडम कम्स एट अ कॉस्ट, आर वी प्रिपेयर्ड टू पे दैट कॉस्ट? तो आई थिंक सबसे पहले यूथ के लिए आई थिंक आप एक डिसिप्लिन पैदा करें अपने जीवन में, आप एक बेहतर नागरिक बने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानकारी हासिल करें, उस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो सिटीजन्स की जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो आप उनके अनुसार अगर आपका आचरण है, तो उंगली एक उठाने से पहले आप अपनी तरफ देखिए। आई थिंक इफ ईच वी आर, हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, अगर आप मानिए कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन बिल्कुल डिसिप्लिन में है और एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर रहे हैं, तो आई थिंक इस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। तो आई थिंक मेरा इस स्वतंत्रता दिवस पर यही एक है कि हम सब एक डिसिप्लिन के साथ और एक नेशन बिल्डिंग के साथ, कि मेरा नेशन बिल्डिंग और इस सोसाइटी में काम करने का क्या दायित्व है। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन इन दायित्वों का निर्वाह करिए। हम बोलते हैं कि सफाई करनी है, तो आप अपना योगदान दीजिए उसके अंदर सफाई के। आप क्यों चाहते हैं कि सफाई कोई और करे? ठीक है, आप खुद उसके अंदर कंट्रीब्यूशन इमेजिन करिए कि अगर 1.4 बिलियन पीपल ये तय कर लें कि भाई हमने सफाई रखनी है, तो देश में बिल्कुल सफाई हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमने पावर वेस्ट नहीं करनी, बिजली वेस्ट नहीं करनी है, पानी वेस्ट नहीं करना, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो द मोमेंट वी रियलाइज, जैसे ही हमें अपने दायित्व के विषय में हम कॉन्शियस हो जाएंगे, तो परिवर्तन हो जाएगा, बहुत भारी परिवर्तन हो जाएगा। और हमने हमारे कल्चर के साथ जुड़ना। दूसरी बात है कि हम अपनी आजकल क्या हो गया कि हम एक त्रिशंकु बन गए। ठीक है, हम वेस्टर्न जो है वो हमें जो है अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी रूट से हम थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। आई थिंक ये एक वक्त है जब हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़े। आई थिंक वो हमको शक्ति देगी, उस संस्कृति से जुड़कर, और वो ही हमें जो है उस मुकाम तक ले जा सकती है। तो ये जुड़ना, और हमारी बहुत ही मतलब प्राचीन सभ्यता, आप हम सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही इवॉल्व सिविलाइजेशन थी हमारी। और जब हम उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे पूरी तरह से ये जो है आभास है इस चीज का कि हमारा देश आगे का जो है वो हम तरक्की करेंगे और एक बड़ा अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को आपके मैसेज से भी बहुत एंकरेजमेंट मिला होगा, एंड होपफुल है कि लोग इन व्यूज़ को लेके चलेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन जितना ज़्यादा ज़िंदगी में रहती है, सक्सेस पाने में भी उतनी ज़्यादा आसानी होती है। बिल्कुल, डिसिप्लिन है तो सक्सेस इज गारंटीड। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो ये अभी हमने देखा काफ़ी टाइम पहले कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही थी, जो आर्मी का, जैसे किसी आर्मी पर्सन का या सोल्जर का जब डेथ होता है, एक उनका जो पेंशन होता है या जो उनकी जो अमाउंट है जो उनको एट दैट मोमेंट दे आर डेथ दे रिसीव इट, उसमें एक कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द वाइफ ऑफ द सोल्जर। सो वी हैव सीन दिस डेज कि ये इसको लेकर के एक बहुत बड़ा इशू है। आपका क्या माइंडसेट है? हाउ डू यू रिजॉल्व इट? बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोल्जर के जो पेरेंट्स है वो दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द पर्सन। मुझे लगता है कि शायद काफी हद तक
तो जनरली पता नहीं होता है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जहाँ तक मैं कहता हूँ, आई थिंक रूल्स रेगुलेशंस सपोर्ट दैट इट इज, मतलब इट्स एवरीथिंग इज, सभी कुछ जो है, आप अगर शेयर कुछ देना चाहते हैं तो सभी कुछ संभव है। सभी कुछ उसका दायित्व जो है एक जवान के ऊपर भी है कि वो क्या विल, सोल्जर है कि क्या विल करता है वो, क्योंकि उसके ऊपर भी है, यू कांट गो अगेंस्ट द विल। लेकिन जहां तक जो उससे रिलेटेड प्रावधान है, तो प्रावधान पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है। और इस चीज को, क्योंकि एक सेंसिटिव चीज है और हम सब इस चीज से परिचित है कि सेंसिटिव है, इस सेंसिटिव माहौल में किस तरह से बैलेंस बनाया जाए, तो उस बैलेंस बनाने की जो भी पॉलिसी होती है, उस बैलेंस बनाने की पूरी तरह से कोशिश करती है। क्योंकि आर्मी जितना हो सकता है देखिए, पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं हम, पूरी तरह से मदद करने की, पूरा परिवार, बिकॉज हमारे लिए डिफरेंस नहीं है। हमारे लिए पत्नी जो है वो भी उतनी जरूरी है, जो पेरेंट्स है वो भी उतने जरूरी है, किस तरीके से। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चला जाए। थैंक यू सो मच अजय सर, यू हैव गिवन अस एन इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझाई और एक एक चीज़ आपने बताई। मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत नॉलेज मिला होगा। और आप लोग किस तरीके के एडवर्स सिचुएशंस में आप नेशन को सर्व कर रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चों को भी उन कहानियों को सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम टेल सुनते हैं, पंचतंत्र टेल्स, हम नॉर्मल टेल्स सुनते हैं, लेकिन एक जवान की जो कहानी होती है ना, वो रियल लाइफ की कहानी होती है। सो हमने काफ़ी कहानी आपसे सुनी एंड it was really lovely to have you here on the podcast. We will look forward, like in future also we could have lot of more stories from you in the coming years, and it was really, really wonderful to have you on the podcast. Thank you so much. I hope you loved the show too. Definitely. And it was wonderful connecting. Thank you so much for coming and giving us time from your precious schedule. Thank you. Thank you and Jai Hind. Thank you.